जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Madhav, people like Swara are the hammerheads who love Mao and Stalin and Pol Pot and Che and adhere to an ideology that has killed 100 million people in the last 100 years. Did you forget? She recently called the Hamas chief, Sarwar, a martyr. The man who perpetrated the October 7th genocide against Jews is being called a martyr by her. Look, there is no cure for communism. It can only be defeated through herd immunity. Madhav, it's not about what these demented, brainwashed zombies are doing. I'm sorry, they're not brainwashed because for that you need a brain. It's about what we are doing. It's not about Swara. Nations weaken not because of their past, but rather by how they are taught it. And India is a nation that glorifies self-loathing and self-flagellation in equal measure. It's a nation that knows more about the Mughals than about Shivaji, Rana Pratap and Prithviraj Chauhan. A nation where people still go and pray at the grave of Aurangzeb, who beheaded Guru Tegh Bahadur, decapitated Sambhaji Maharaj, demolished Kashi Vishwanath and murdered 4.6 million Hindus. This is a nation where Guru Arjan Dev was forced to sit on a hot plate and literally cooked alive by the Mughal Emperor Jahangir. And what do? We immortalize Jahangir in our films as the affable, feather-toying romantic Salim. This is a nation where a celebrated historian Ramchandra Guha did not want Delhi roads to be named after Chhatrapati Shivaji, the man who birthed an empire stretching from Peshawar to Plassey. You know why? Because in Guha's words, Shivaji was a, quote, little-known regional figure and a feudal lord who endorsed caste hierarchies, unquote. This is a nation, Madhav, where we eulogize invaders who over centuries perpetrated the largest genocide in human history. A nation where celebrities take pride in naming their son Temur, where politicians gush when called by their nickname Tipu. India is a nation whose history has been written by those who hated Hindus, Hinduism and Hindustan. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो सबसे पहले जय शिवाजी महाराज, जय छत्रपति संभाजी महाराज और जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो फिर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं औरंगिया के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, छावा मूवी के बारे में और छावा मूवी के ऊपर जो प्रतिक्रिया आए हैं और हमारे जो संभाजी महाराज को बहुत गलत तरीके से एक शांतिदूत कम्युनिटी जो है वो कैसे गाली दे रही है, उनकी जो विरासत है उसको बिल्कुल गलत तरीके से उसको दिखा रही है सोशल मीडिया में और ऐसे ऐसे मीम्स बना रही है जो देखने के टाइम ही खून खौलने लगता है। तो फिर जैसे आप लोगों को पता है 2025 में फरवरी 14 में वैलेंटाइंस डे में तो छावा दिवस, उस टाइम हमारा बॉलीवुड ने एक मूवी दिखाई है अभी संभाजी महाराज के ऊपर, छावा नाम का मूवी है और एक अच्छा मूवी है। कुछ जगह में उसमें भी सेक्युलरिज्म है, उसको एक घुसेड़ के दिखाया है, पर अच्छी मूवी है क्योंकि उस मूवी में संभाजी महाराज को एक निडर, एक पराक्रमी, एक दृढ़ निश्चय वाला, एक सनातन धर्म को आदर करने वाला राजा दिखाया है जो अपने धर्म के ऊपर बिल्कुल तटस्थ है और युद्ध लड़ने में बहुत ब्रेव है, बहुत निडर है। ऐसा नहीं दिखाया है कि वो ठीक तरह युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं, उनका जो पराक्रम है, जो उनका शौर्य है उसको ठीक तरह नहीं दिखा पाया, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह दिखाया है सब। और औरंगज़ेब को एक क्रूर, निस्संशय, एक ऐसा बंदा जिसने एक आदमी को बंदी करके उसको आँख फोड़ दिए, उसकी ज़बान बाहर निकाल के फाड़ दिया,
खाल उखेड़ दिया। सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसने, उस राजा ने, उस महाराजा ने, उस छत्रपति ने उसकी एक मांग पूरी नहीं की कि वो इस्लाम कबूल नहीं किया उसने। उस एक कारण के कारण उस एक बिल्कुल क्रूर शासक ने, जो अपने आप को आलमगीर बोलता था, उसने एक ऐसा कृत्य किया। तो फिर उस मूवी के ऊपर कैसे एक कचरा सा और बहुत ख़राब तरीके से जो हमारे महाराजाओं के ऊपर, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर और शिवाजी महाराज के ऊपर भी अभी हो रहा है। ये बहुत गंदी तरीके से ये जो सांची दूत कम्युनिटी है ये गाली दे रही है, ये उनके ऊपर गलत वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे झूठी जो हिस्टोरिक लेके आ रहे हैं ये दस्तावेज़, जिससे लग रहा है कि हमारे महाराजाओं ने, हमारे जो छत्रपतियों ने कोई गलतियाँ की हैं। ऐसे झूठ निकाल के आ रहे हैं। विकिपीडिया में भी उनकी जो हिस्ट्री है उसको गलत तरीक़े से लिख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये महाराजा जी थे, ये सही नहीं थे, इनकी नीतियाँ सही नहीं थी, इनकी साम्राज्य जो भी था वो भी छोटा ही था। तो सबसे पहले ये बात है कि औरंगज़ेब अगर छोटा सा साम्राज्य होता तो फिर ये आता ही क्यों दक्कन में आके शिवाजी महाराज से पहले क्यों लड़ा। शिवाजी महाराज ने अपने दम पे, उन्होंने एक साम्राज्य पहले से ही उनके अंडर में नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक करके उन्होंने फोर्ट्स, लैंड सबको एक्वायर किया। उन्होंने अपने आप लड़ा, उन्होंने किसी का उनके पास ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं था, वो एक नेपोटिस्टिक बंदे नहीं थे जैसे ये औरंगज़ेब था। इसकी जो फादर थे शाहजहाँ, उनके फादर जहांगीर, उनके फादर अकबर, उनके फादर हुमायूं, उनके फादर बाबर, इन सब लोगों के पास इतना पैसा था, इतना लूटमार किया था इन लोगों ने, इन लोगों के पास इतनी सेना थी, इतना धन था, दौलत था। तो फिर ये क्यों आए दक्कन में, किससे लड़ने के लिए आए, किससे इसको इतना ज़्यादा खौफ था कि इसको 5 लाख की सेना लेके आके लड़ना पड़ा उस एक राजा से, जिस राजा के पास बस 20 से 25 हज़ार की सेना थी। और अपने पीक में भी बोलते हैं बहुत सारे लोग कि 1,50,000 या 2 लाख मैक्सिमम मराठा साम्राज्य की सेना थी। मराठा साम्राज्य जो हुआ करती थी, मराठा साम्राज्य या हिंदवी स्वराज्य साम्राज्य, वही करेक्ट वर्ड है। हिंदू राष्ट्र थी, हिंदू राष्ट्र जो असली हिंदू राष्ट्र था वो मराठा साम्राज्य ही था। और ये हिंदू राष्ट्र अपने पीक में भी कम से ज़्यादा लोगों को लड़ाई में हराता था, क्योंकि इनकी जो युद्ध कौशलता थी वो बहुत निपुण थी। बाजीराव, जैसे आप लोगों को पता है, पेशवा बाजीराव, उन्होंने भी बहुत सारे युद्ध लड़े, मुग़लों को भी हराया, निज़ाम शाही को भी हराया, और भी बहुत सारे, निज़ाम को हराया, निज़ाम शाही के नहीं, निज़ाम को भी हराया, और भी बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते। और एक बहुत पराक्रमी सेनापति हुए पेशवा बाजीराव, वो भी मराठा सेना में से थे और मराठा ही थे। तो फिर ऐसे एक पराक्रमी साम्राज्य से, जो कम आदमियों से एक बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देते थे, ऐसे लोगों के साथ लड़के ये जो औरंगज़ेब ये 25-30 साल इधर दक्कन में पड़ा रहा, इतना पड़ा रहा कि उसको दौड़ दौड़ के मार रहे थे संताजी, धनाजी और भी बहुत सारे मुग़ल नहीं, मराठा सरदार हैं, जो हमारे संभाजी महाराज को इसने क्रूर तरीके से मारने के बाद जो एक ज्वाला उठी हुई थी मराठाओं के अंदर से, उस ज्वाला को कैसे मराठाओं ने बिल्कुल आगे लेके गए। और वो ज्वाला लेके गए इसलिए क्योंकि मराठाओं को पता था कि हमारा देश इन लोगों से मुक्त करवाना हमारा ही काम है, क्योंकि ये बहुत पराक्रमी थे। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, ये जो राजाएं थे, ये लोगों के लिए लड़ते थे,
ये किसानों के लिए लड़ते थे, ये हिंदुओं के लिए लड़ते थे, ये हमारे जो देवालय हैं, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, इनको बचाने के लिए लड़ते थे, ये अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, ये किसी और को, एक हिंदू को धर्म परिवर्तन से बचवाने के लिए लड़ते थे। ऐसे राजा महाराजा थे। और इनका जो युद्ध कौशल था ये इतना पराक्रमी था, क्योंकि ये देखिए आप कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, ये स्टार्टिंग में जब लड़ाई स्टार्ट किया, इन्होंने राजपूतों की तरह ये जो खुले में आके लड़ना, एक ऐसी सेना के साथ जिसके पास ज़्यादा लोग हों, और एक सुसाइड बैटल में जाके मर जाना, साका कर लेना, ऐसा गलती नहीं किया इधर मराठाओं ने। मराठाओं को पता था कि हमको आगे कब जाना है और पीछे कब आना है। आप कभी भी पीछे हटने की चीज़ को बुज़दिलता नहीं बोल सकते। आप राम जी की तरह हर टाइम लड़ नहीं सकते। राम जी ने भी वाली को कैसे मारा था, उन्होंने पीछे देख के मारा था। वो युद्ध आगे जाके भी लड़ सकते थे, उनको पता था, पर उन्होंने एक निश्चितता को रोकने के लिए उनको लगा कि ये मेरे को एक इस तरीके से लड़ना चाहिए इस बंदे से, तो उन्होंने उस तरीके से लड़ा। उनकी भी मर्यादा एक तरीके की थी, उन्होंने भी वचन पे अपना काम किया, पर इतना भी ज़्यादा नहीं किया कि धर्म को ही वो गलत तरीके से ले पाए, अधर्मियों को ही वो नाश नहीं कर पाए। राजपूतों की यही गलती थी कि वो सब कुछ आन बान शान में आ जाते थे। आन बान शान ये एक हद तक ही हो सकता है। आप अपनी जो प्रजाओं को सुरक्षित नहीं रख पाओगे, तो फिर आप पीछे नहीं हट के भी क्या कर सकते हो। तो फिर आपको लड़ना होगा, तो फिर छापामार युद्ध, और जैसे मराठी लोग बोलते हैं गनीमी कावा, गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर से ही आप लड़ सकते हो ऐसे लोगों से। और छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बहुत अच्छी तरह पता था। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया, इन्होंने चाणक्य की नीति यूज़ की, साम दाम दंड भेद। ये साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति, जो रणछोड़ दास हमारे कृष्ण भगवान को जो लीला करते थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, लीला वाले भगवान थे, जिनको पता था कि अधर्मियों को मैं पूरी तरह नाश कर दूंगा। तो फिर उन्होंने महाभारत किया, उसमें जो भी अधर्मी थे उनको मृत्यु के शीश में पहुंचाया उन लोगों ने, और उनको कोई निकट तक भी उनको उसमें कोई गलत एक मैसेज नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे को करना है तो फिर करना है। और शिवाजी महाराज ने भी यही किया कि उनको युद्ध लड़ना था, और वो एक हद तक नीति भी लगा के रखते थे। उनको पता था कि मेरे को इनकी तरह जो ये मलेच्छ हैं, ये जो पीसफुल कम्युनिटी है, ये जो शांतिदूत कम्युनिटी है, इनकी तरह दरिंदा नहीं बनना है, पर मैं अपने लोगों को सुरक्षित रखूँगा। मेरे को रखना आता है अपने लोगों को सुरक्षित, वो तरीके से किया। उसको ही हमारे संभाजी महाराज लेके गए आगे। वो शेर के बच्चे थे, तो फिर ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो फिर उन्होंने 120 युद्ध लड़े, बहुत सारे ड्रॉ हुए युद्ध, और बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते भी, कोई युद्ध हारे नहीं। पर वो ऐसे पराक्रमी राजा को हमारी जो शांतिदूत कम्युनिटी है वो गाली दे रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि उनको लग रहा है ये जो छावा मूवी है, इसमें इनको बहुत पराक्रमी दिखाया है, पर ये जो आलमगीर है, ये जो कुत्ते की तरह भाग भाग के मरा है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, उसको एक निर्बल, एक बिल्कुल वीक सा, जिसके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही करते रहता है, बस रोते रहता है, रुंदू बंदा है बिल्कुल, ग्रेप्स खाते रहता है, और कोई ट्रेट जो अच्छा ट्रेट हो उसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल एक दरिंदा आदमी है। एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बैठा के उसका ज़बान निकाल के पार देता है, उनका आँख फोड़ देता है, ऐसी गंदी कृत्य करता है। और ये शांतिदूत कम्युनिटी आके इधर बैठ के बोल देता है कि हमारे आलमगीर है, हमारे राजा महाराजा बड़े बहुत अच्छे लोग थे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो फिर इन लोगों को ऐसे लग रहा था, तो फिर जिन्ना ने सही बोला था कि
हिंदुस्तान के जो हीरोज़ हैं वो हमारे हीरोज़ कभी नहीं हो सकते। तो फिर आप लोगों को उसी वक्त चले जाना चाहिए था, इधर से रुखसती पर उसके लेके जाना चाहिए था। आप उधर रहते, सबके सब जो हिंदुस्तान में अभी बैठे हुए हैं उधर रहते, उधर अपने आलमगीर को, अपने शाहजहाँ को, अपने जो भी उनके आपके राजा हैं उनके गुणगान उधर बैठ के करते। इधर क्यों कर रहे हैं आप? इधर तो आपको हमारे राजा हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं उनको भी हीरोज़ बताना होगा आपको। आप उनको गाली नहीं देंगे, गाली देंगे तो आप अरेस्ट होंगे। यूपी से बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी को ये बोलूँगा, आप अरेस्ट कराएं इन लोगों को। कम्युनल टेंशन फैलाना चाहते हैं लोग। और महाराष्ट्र के पुलिस को भी बोलेंगे कि अगर यूपी पुलिस नहीं कर रही है तो फिर आप जा इधर आके ट्रांजिट का रिमांड लेके इस जिस लोगों ने ये मीम बनाया इसको अरेस्ट करके अंदर डालिए। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा इशू है और ऐसे ही गर्व के लिए अच्छी अच्छी मूवी बनाते रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। जय शिवाजी, जय भवानी।